Hello children, we are going to start our last part of the lesson Lost Spring. Okay. So this lesson is about Mukesh. Mukesh is a boy who is also underprivileged boy, but he is very much a different boy. So we want to see how he is different. So let us look at the lesson. This story is about Mukesh. He is a son of a bangle maker. So Mukesh, son of a bangle maker, living in Firozabad. Mukesh is different. Why he is different? Because he wants to be his own master. Now the whole city of Firozabad is engaged in making bangles. Firozabad is famous for bangles. So in this particular city, there are all the children also engaged in making bangles. Now from this lesson, the most important thing that you need to prepare for your writing task is child labor. So something can always be asked on child labor, because the story of Mukesh and the story of this city of Firozabad is about child labor. And also the very important question is, what are the hazards of working in bangle industry? So I have given it to you point wise. So we are going to look at the hazards of working in the bangle industry. So you have understood that Mukesh stays in Firozabad. Firozabad is a city famous for bangles, and everybody works in bangle industry in Firozabad. So now we are going to look at the hazards of working in bangle industry. So Firozabad is a center of bangle blowing industry. Every other family is engaged in making bangles. Generations have worked around furnaces, welding glass, making bangles in the dingy cells without air and light. Very small rooms are there. Dingy cells means small rooms, because these people are very nobody is rich over here. Isliye wherever they are making bangles, it is like a somewhat a cottage industry. So they are working in small rooms. Dust of glass goes in their eyes, and many have lost eyesight in this low paying work. When they are welding the glass, the particles of the glass enter their eyes and they harm their eyes. Illegal child labor goes on with some 20,000 children working here. How many children are working in this industry? 20,000 children. Apart from elders. Elders are also working in this industry, but children also help them. They live in broken hutments with half-filled stomachs and no dreams. So they have no dreams. All of them, they feel it is their destiny, and so they have no dreams dreams of doing anything else. So they feel it is their destiny, they are born in this family and this is the only thing that they know, and so they keep on doing it. They don't think of changing. Okay, so let us move ahead. So now why they are caught in the vicious circle of poverty, that we need to see. Now our author Anis Jung also meets them. She goes to meet them, and let us see what she asks them. Anis Jung asks the young men, why not organize yourself into a cooperative? Right? She says you need to make a cooperative so that you can earn better and nobody can kind of cheat you. So what do the men say? Let us see. But the men have lost all daring. They don't dare to even form a cooperative. डरते हैं, तो किससे डरते हैं हमको देखना है. They are under the stigma. I'm sorry, you have to add an I over here. They are under the stigma of their caste and they think this is their destiny. Okay, add one I here when you are taking the notes. But the men, what is the reason why can't they form a cooperative? Because they have lost all daring. हिम्मत नहीं है. दूसरा क्या है? They are under the stigma, stigma of their caste and they think this is their destiny. यही बस हमारा यही destiny है,
हमको इसमें से हम नहीं निकल पाएंगे। ये उन जब मन में एक होता है ना कि बस ये एंड है, यही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा निराशाजनक उनका सोचना है, इसलिए दे थिंक इट इज देयर डेस्टिनी, इसी के लिए वो बने हुए हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ मिडिल मैन। नाउ दे आल्सो पीपल, ये लोग बैंगल डायरेक्टली बना के और लोगों को बेचते नहीं है, फिर बैंगल्स उनसे कौन खरीदते हैं? मिडिल मैन खरीदते हैं। तो जैसे फार्मर्स का होता है कि फार्मर्स को ज़्यादा मिलता नहीं, मिडिल मैन कमा लेते हैं, वैसे ये बैंगल इंडस्ट्री का है। So they are afraid of middlemen, police, साहूकार्स, bureaucrats and politicians. Middleman you understand, जो traders होते हैं बीच में, वो police पता है, साहूकार्स you know, bureaucrats are the government officers and the politicians. तो ये जो government officers से permission लेनी पड़ेगी ना, cooperative बनानी होगी तो all those things that they need to do, so they are not having any kind of daring to do that. So children live with the burden because the elders are even not able to have the daring. So children live with the burden. Children cannot escape it without education. So they cannot go to school doing what their forefathers did. They just follow the family trade, making bangles. Now the main question of this lesson again is, how is Mukesh different? So this story is about Mukesh. ऐड करो यहाँ पे, a son of bangle maker living in Firozabad. Mukesh is different. He wants to be his own master. He dares to dream. He wants to be a motor mechanic. This is his dream. How is Mukesh different? तो पहला तो he dares to dream. He has that daring. And what does he want to be? He wants to be a motor mechanic. He wants to drive a car. That is his dream. जो नाम है, I want to drive a car. So how is he going to go about it? Now देखो आपका planning थोड़ा यहाँ पे आएगा. He plans to go to a garage to learn. उसको पता है, अभी उसने पहले objective decide कर लिया है कि he wants to be a motor mechanic. फिर अभी उसके next activity क्या है, step क्या है, पहले कहाँ जाने का? Garage. He wants to go to a garage to learn. He is not bothered about the garage being far away. उसमें क्या डिफिकल्टी आएगी, उसको पता है, उसने सोच लिया है. ही इज रेडी टू वॉक ऑल द वे. ओके, सो ही नोज कि ही हैज टू वॉक ऑल द वे टू द गराज, बट ही इज डिटरमिन्ड कि ही विल डू दैट. हिज डिटर्मिनेशन टेल्स दैट ही विल अचीव हिज ड्रीम, राइट? सो ही इज डिटरमिन्ड अबाउट अचीविंग हिज ड्रीम. ही ऑल्सो नोज हिज लिमिट्स. जैसे हमने बोला कि जो भी ऑब्जेक्टिव रखो वो कैसे रखना है, प्रैग्मेटिक रखना बहुत ज़रूरी है. तो वी वांट टू सी कि वेदर हिज ऑब्जेक्टिव इज pragmatic, realistic. तो he also knows his limit. He is not interested in flying, interested in the planes flying above. A few planes fly over Firozabad. So Anis Jung asks him कि why don't you want to drive a plane then? You want to drive a car only? You don't want to drive a plane? Because he can see the planes also. तो his dream is very pragmatic, he is very realistic, he knows his limit. प्लेन तो सवाल ही नहीं है. कार भी ऐसे देखा जाए तो इन लोगों को कार तो उसको खरीदनी तो नहीं है, सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना है. तो उसका जो भी ड्रीम है वो कैसा है? वेरी वेरी रियलिस्टिक. ही हैज़ अ वेरी रियलिस्टिक ड्रीम. सो ही नोज हिज लिमिट. सो दैट इज हाउ ही इज डिफरेंट. मेनली क्या है डिफरेंस की बात कि मुकेश का क्या है? ही इज Mukesh dares to dream. Mukesh is different. He is the son of bangle maker living in Firozabad. So I hope you have understood how he wants to achieve his dream. First, he wants to be a motor mechanic. He wants to drive a car. He will go to the garage to learn, and the garage is far away, but he is ready to walk all the way. And his determination tells that he will achieve his dream. He also knows his limits. He is not interested in flying the planes above. So we are going to go ahead from here. All the notes you need to take, you need to copy them down in your notebooks. I hope you have got your notebooks now. So okay, now we are going to look at the see, there is a lot of grammar from every lesson that you need to practice. So taking notes is very important. Now there is one more thing. Now that you are 12, up till now we have thought ki in
when we are doing poems, we look out for figures of speech, right? But the same figures of speech apply to text, and we will call them literary devices. उनको हम क्या बोलेंगे? The same things, but वो वही जैसे हाइपरबोल है, मेटाफर है, सिमिली है, ये टेक्स्ट में भी तो यूज हो सकता है ना? इट इज ओनली द वे ऑफ राइटिंग. सो यू कैन, इट कैन बी यूज्ड इन पोएट्री एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड इन टेक्स्ट. तो ये कई सारे लेसन में से तुमको पूछा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दोज लेसन्स. So if at all it is asked from this lesson, we are going to look at the literary devices used in this lesson, and mainly 3 we can find. So we are going to first revise. It is given your text in your textbook only. So hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it is actually. एक्चुअली जो चीज़ जैसी है उससे उसको ज़्यादा बताना, जो हम इजी तरीके से पहले से बोलते आए हैं कि हाइपरबोल इज एग्जैजरेशन. तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? मेनली दिस होल लेसन जो पहला पार्ट है किसका? साहेब का. उसमें बहुत सारे एग्जैजरेशन यूज़ किया है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इसको गोल्ड बोल दिया तो थोड़ा नेचुरली बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया. तो ये लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? हाइपरबोल. ओके, तो ये लाइन लिखो, उसके सामने हाइपरबोल लिखो, और उसका अगर नहीं याद रहता तो ब्रैकेट में एग्जैजरेशन लिख डालो. अभी मेटाफर का देखेंगे. मेटाफर इज मेनली, अभी इतना लंबा पढ़ के तुम शायद कंफ्यूज ही हो जाओ, तो मेनली सिंपल तरीका मेटाफर याद रखने का, व्हेन वन थिंग इज गिवन द नेम ऑफ अदर, उसको क्या बोलेंगे? मेटाफर बोलेंगे. जैसे किसी के सिल्की बाल हो तो उसको हम रेशम बोल देंगे, तो फिर क्या हो गया? मेटाफर हो गया. बालों को डायरेक्टली हमने क्या बोला? रेशम बोल दिया, लहराते रेशम, ऐसे कुछ बोल दिया है ना. तो वो एक चीज को दूसरे का नाम देना, उसको बोला जाता है मेटाफर. तो अभी इसका एग्जाम्पल है, द रोड वॉज रिबन ऑफ लाइट. रोड को क्या बोल दिया? रोड को रिबन ऑफ लाइट ही बोल दिया, क्योंकि ऊपर जो लाइट लगे होते हैं उसका प्रकाश पड़ता है. तो रात को रोड कैसा लगता है? लाइक नहीं यूज किया. देखो यहाँ पे जब कंपैरिजन इनडायरेक्ट होता है बाय गिवन वन थिंग द नेम ऑफ अदर विदाउट यूजिंग लाइक, उसी को बोला जाता है मेटाफर. द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट. अगर हम ऐसा बोलते कि रोड वॉज लाइक अ रिबन ऑफ लाइट, तो क्या हो जाता है? सिमिली. When comparison is made with the words like and as, तो हम उसको simile बोलते हैं. Without it, when the one thing is given the name of the other, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं. तो मेटाफर का ये एग्जाम्पल है, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट. सिमिली तो इज द इजिएस्ट. सिमिली का एग्जाम्पल देखते हैं. एज वाइट एज स्नो. एज का मतलब भी क्या होता है? लाइक. तो बोल रहे व्हाइट लाइक स्नो बोल रहे यहाँ पे, मतलब एज वर्ड यूज हो के लाइक वर्ड यूज हो, इट इज ऑलवेज सिमिली. सो these main 3 things you have understood. So we are going to look at the exercise part that is given. I have given the solutions here, but you need to understand one by one. Okay. Sahib Alam, which means the Lord of Universe, is directly Sahib Alam, which means the Lord of Universe, is directly to contrast to what Sahib is in reality. ठीक है. तो साहिब आलम उसका जो नाम है, उसका नाम में ही क्या है? एग्जैजरेशन है. पूरी लाइन देखने की जरूरत ही नहीं है. साहिब आलम, बिकॉज वी नो कि साहिब कौन है, तो वो हाइपरबोल है, एग्जैजरेशन है, आयरनी भी इसको एक तरह से बोल सकते हैं. तो हमें यहाँ पे हाइपरबोल बोलेंगे. ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन. ये पूरा जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड किस में ड्रॉन हो गया है? एयर ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब अनहैप्पीनेस. मुकेश को देखो, ये कई सारे बच्चों को तुम देखो जिनका बैंगल इंडस्ट्री में काम करके आईसाइट एकदम वीक हो गया है, बड़े होके वो अंधे भी हो जाते हैं. जैसे साहिब जैसे बच्चे हैं जो बचपन में थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लिए, वो फटे पुराने शूज़ पहन लिए, एंड आफ्टर दे हैव टू वर्क, चाइल्ड लेबर उनको करना पड़ता है. तो देयर पूरा चाइल्डहुड इज ड्रॉन्ड, डूब गया. ड्रॉन्ड मतलब डूब गया इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन. तो दुख में डूब गया ऐसे नहीं बोला. डिसोल्यूशन इज अनहैप्पीनेस. तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? वो जो सिचुएशन है उसको एयर बोला. ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन.
ड्रॉन्ड इन एन सिचुएशन ऑफ अनहैप्पीनेस के बदले सिचुएशन को क्या बोला, एयर ऑफ डिसोल्यूशन, इसलिए उसको मेटाफर बोलेंगे. मैंने नहीं याद रहे तो एग्जाम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया है. सिचुएशन इज कॉल्ड द एयर. ओके, नाउ नेक्स्ट और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज एंटीथेसिस. अभी एंटीथेसिस को समटाइम्स नाउअडेज पीपल कॉल इट कॉन्ट्रास्ट, है ना. कॉन्ट्रास्ट, एंटीथेसिस, ये दोनों वर्ड यूज करेंगे तो चलेगा. तो मेनली द बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट इट एज एंटीथेसिस इन द पोएम, तो वी कैन यूज द सेम थिंग फॉर द लेसन्स एज वेल. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि what are the antithesis to contrasting or opposite ideas. So let us look which opposite ideas are there in this line. Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो पहले तो बोला पेरीफेरी मतलब होता है कि बॉर्डर पे, नजदीक, और फिर तुरंत बोला yet miles away, इसलिए टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. एक तो है पेरीफेरी पे और दूसरा क्या है, माइल्स अवे. अभी ये हो गया एंटीथेसिस या कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिट आइडियाज दे हैव यूज्ड. नेक्स्ट इज फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए क्या है, वंडर है, बहुत ही एक्साइटिंग है, और बड़ों के लिए क्या है, एक जीने का तरीका है. तो ये दोनों अगेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है. तो ये नंबर 4 पे भी है, नंबर 6 पे भी अगेन इट इज कॉन्ट्रास्ट या एंटीथेसिस. वहाँ लिखने की जगह नहीं है इसलिए यहीं पे मैंने लिखा हुआ है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या है 4 में, एक तो वंडर और दूसरा जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. अभी हम 6 पहले देख ही लेते हैं. शी हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज. ठीक है, एक बाजू को कैसे बोला, हैप्पीनेस की बात है, बैंगल्स है, कुछ हैप्पीनेस की बात है, और दूसरी बाजू नो लाइट इन हर आईज, ये दुख की बात है. इसलिए ये भी क्या है, एंटीथेसिस है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है. ठीक है, अभी हम 5th देख रहे हैं. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन. तो व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे नहीं बोलते हम, लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं. तो विच वन इट इज, टेक्स्ट के लिए लिटरेरी डिवाइस. तो ये वर्ड क्या बताता है तुमको, कौन सा लिटरेरी डिवाइस, लाइक वर्ड बताता है कि इट इज सिमिली. ठीक है, तो कैसे सिमिली है, हैंड्स को कंपेयर किया है विथ टोंग्स या चिपिया. टोंग्स का मतलब होता है चिपिया, जो आप रोटी पकड़ने के लिए यूज करते हैं ना, वैसे वो उसके हाथ चिपिये की तरफ फास्ट मूव होते हैं व्हेन शी इज मेकिंग द बैंगल्स, इसलिए ये सिमिली है, लाइक वर्ड आया है. 6th हमने देख लिया कि ये अगेन क्या है, 6th इज एंटीथेसिस या कॉन्ट्रास्ट. और दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कौन सी है 6th में, एक तो है द हैप्पीनेस का फीलिंग बिकॉज ऑफ बैंगल्स, और दूसरा है दुख का फीलिंग बिकॉज ऑफ नो लाइट इन हर आईज, शी इज ब्लाइंड. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. ओके, नाउ दिस इज अ क्लियर कट कॉन्सोनेंस बिकॉज एफ 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 साउंड इज रिपीटेड. तो कॉन्सोनेंट साउंड एफ इज रिपीटेड. यू कैन वेरी वेल राइट हियर अलिट्रेशन, या मेनली अलिट्रेशन में भी 2 तरह के होते हैं, उसमें से ये है कॉन्सोनेंट्स. नाउ वेब ऑफ पॉवर्टी, इस तरह के जो लाइंस होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है. ऑफ वर्ड तुमको बताता है कि ये डेफिनेटली मेटाफर है. कैसे, सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी है, लेकिन सिचुएशन को क्या बोल दिया, वेब. पॉवर्टी में फंसे हुए इसलिए वेब बोल के बहुत ही इफेक्टिव कर दिया उसको, वेब ऑफ पॉवर्टी. सिचुएशन इज कॉल्ड द वेब, वन थिंग इज गिवन द नेम ऑफ अदर, मेटाफर. स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, अभी यू कैन इजीली टेल दैट इज हाइपरबोल, एग्जैजरेशन, राइट. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. तो ये जो है सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या है. ओके, थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. तो इसमें सेकंड पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पार्ट में है. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. सर्वाइवल को क्या बोला, रैक पिकिंग को ही सर्वाइवल बोल दिया, इसलिए यहाँ पे मेटाफर है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. एक तो कॉन्ट्रास्ट कैसा आ गया, एक हेवी चीज के बारे में बोला और दूसरा लाइट चीज के बारे में बोला.
तो कौन सा चीज़ उसको हेवी लगता था और कौन सा चीज़ लाइट लगता था, ये क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट आ गया. सो इट इज एंटीथेसिस. सो लेट अस मूव अहेड. Now we are going to look at the punctuation. Now here it is for you to write. When you will write the para, which is very important for punctuation, at least once or twice, तो you will automatically remember. तो इसके लिए जब आपको ये पैरा क्वेश्चन में मिलेगा तो ये जो है मार्क्स, ये कोई भी मार्क्स यहाँ पे होंगे नहीं. तो रीड द पैसेज बिलो एंड नोट द पंक्चुएशन मार्क्स एंड री राइट इट. ठीक है. सो ये जो है ना, यहाँ पे कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है. इफ एनी ऑफ यू इज कंफ्यूज कि भाई पंक्चुएशन क्या होता है, तो ये है तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा है ना, ये क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, जितने भी ये चीज़ें हैं जो भी यूज़ किए, फुल स्टॉप, या ये देखो यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिया है कि ये अलग है, यहाँ पे डैश डैश भी यूज किया है, इसलिए ये इट इज़ हिज करम से लेके ऑफ द शैंटी टाउन. शैंटी मतलब जो ऐसे कैसा टाउन है, अनकेप्ट सा टाउन है ना, गरीब टाउन है, टूटी फूटी झोपड़ी है वहाँ पे, तो झोपड़ी को ही शैंटी बोला जाता है. हटमेंट्स वाला ये टाउन है. तो ये पूरा आपको लिख लेना है एक बार. सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर द पंक्चुएशन मार्क. टिल यू डोंट राइट यू विल नॉट रिमेंबर. तो यू हैव टू राइट इट वंस एंड देन if possible you have to write it first without next time. पहले तो एक बार लिख लो with all the punctuation marks. Next time you write it without punctuation marks and then you put them. Then you add the punctuation marks. So that writing practice तो you will also, you only will have to do. I have given you कि कहाँ से कहाँ तक पैरा लेना है and you have to rewrite it. And rewriting it twice it will be very very useful. Read the passage below for vocabulary fill-ups and punctuation marks. Again, when I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered से हम शुरू करेंगे. और few airplanes fly over फिरोजाबाद. अगर बुक्स है तो अच्छा ही है, बुक्स ना हो तो भी तुमको यहाँ से मिल जाएगा. लास्ट लाइन क्या है, that he sees hurtling down the street of his town a few एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. ये है यहाँ पे लास्ट लाइन. तो यहाँ तक आपको करना है. ठीक है. सो ये भी यू विल री राइट एंड लाइक सी यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे अगर मैं नीचे ब्रैकेट में वोकेबुलरी फिलअप्स के लिए देती हूँ तो कौन कौन से वर्ड्स मैं डाल सकती हूँ. तो कोई कोई तो ऐसे वर्ड्स होंगे कि जैसे ये हो गया, स्टार्टिंग एट हो गया, कहीं पे एट है ना, कोई एट जैसा डाल सकता है, एन जैसा भी निकाल सकता है, ये एम्बेरसमेंट को भी निकाल सकते हैं, रिग्रेट को निकाल सकते हैं, सडनली को निकाल, कोई भी वर्ड्स को निकाल सकते हैं. इसलिए आपको इसको भी एक बार राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा तो यू विल बी इजीली एबल टू रिमेम्बर. नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ ग्रामर. तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि वी ऑल्सो कॉल व्हाट, डू एज डायरेक्टेड. To do as directed a transformation we are going to see. Everything you need to copy down. Explanation part you don't have to write, but it's up to you. तो बाद में कई सारे बच्चे you know when they will be practicing, तो they will want to have something with them if they are not very sure about transformation. Even I have written the explanation part for you. Few aeroplanes fly over Firozabad. Here what you have to do, change to negative. तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्यू का मतलब ही होता है नॉट मेनी. फ्यू मीन्स व्हाट, नॉट मेनी. तो व्हाट विल बी द आंसर नेगेटिव में, नो और नॉट यू हैव टू यूज. नॉट मेनी एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद इज द आंसर. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. ये हम अभी देखेंगे, करना है अपने को. यू हैव टू यूज एज सून एज. ठीक है. सो व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, यूज एज सून एज. तो यहाँ पे जो टाइम का बताने वाला वर्ड कौन सा है, व्हेन है. तो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है एज सून एज एंड व्हेन शो टाइम. सो वी विल रिप्लेस व्हेन विल एज सून एज. कैसे, एज सून एज आई सेंस अ फ्लैश ऑफ रह गया, ऑफ इट इन मुकेश कॉमा आई एम चीयर्ड. ऑफ निकालना नहीं है, ऑफ डालना है. तो व्हेन आई एम राइटिंग सो मच समटाइम्स मैं भी कोई मिस्टेक्स कर देती हूँ, मेरे मार्क्स काट लेना. तो ऑफ डालना है वहाँ पे. एज सुन एज आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश कॉमा आई एम चीयर्ड.
When I sense a flash of it, I am cheered. Same sentence we have taken again and we want to make it simple. तो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस बनाने हैं. कॉम्प्लेक्स है ये सेंटेंस. ये कैसे हमको पता चलता है? व्हेन यूज किया है. कंजंक्शन व्हेन को हमको निकालना पड़ेगा जब सिंपल बनाएंगे. एंड देयर आर टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस. एक है सेंस और दूसरा है चीयर्ड. ये दोनों को हमको निकालना नहीं है, एक को हमको बदलना पड़ेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस कैन हैव ओनली वन वर्ब. तो हम क्या करेंगे? एक वर्ब को हम आईएनजी लगा के पार्टिसिपल बनाएंगे. पार्टिसिपल से किसकी याद आ गई? लिटिल फ्रांस. उसको एम हैमल क्या पूछने वाला था? अबाउट पार्टिसिपल्स. तो हम सेंस को पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? बाय मेकिंग इट एडिंग आईएनजी, सेंसिंग. तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे. क्या लाइन है देखो. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. तो हम बोलेंगे सेंसिंग अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. व्हेन आई सेंस हम पूरा निकाल देंगे. व्हेन तो निकालना ही है क्योंकि अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स रहता है. सेंस को आईएनजी लगा दिया. सेंसिंग अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. तो इसमें एक ही अपने को क्या मिलता है? वर्ब मिलता है, दैट इज चीयर्ड. आई एम चीयर्ड. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन. गॉड गिवन लीनिएज, जो गॉड ने दिया हुआ हमारा ये लीनिएज है, फैमिली का बिजनेस है ना. फैमिली से जो पास होता है उसको लीनिएज बोलते हैं. उसको एसेटिव करना. एसेटिव करना मतलब एक सीधा साधा सेंटेंस बनाना. उसको अगर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क है वो निकल जाएगा. तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? ये जो क्वेश्चन बोला है ये आंसर पाने के लिए पूछा ही नहीं है. किसी चीज को एम्फेसिस, उस इसी लाइन का मीनिंग एम्फेसिस करने के लिए बोला. जैसे हम बोलेंगे कि हम भूखे रह सकते हैं, तो मतलब हम भूखे नहीं रह सकते. तो उसी का मतलब है कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन. तो मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन. तो अ गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन. ऐसे हम इसको असर्टिव बना सकते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Change the degree. अब ये मोर से अपने को पता चलता है कि इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरिजन बिटवीन क्या है? डार्क और लाइट है. तो डार्क, एक चीज को सबसे अच्छा नहीं बोला है तो हम उसको सुपरलेटिव बोलते थे. लेकिन ये तो सिर्फ दो चीज के बीच की कंपैरिजन ही है. एक की कंपैरिजन सबके साथ होती है तो सुपरलेटिव होता है. दो चीजों की कंपैरिजन होती है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती, मतलब वो सुपरलेटिव में नहीं हो सकती कन्वर्ट. इसको सिर्फ पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मोर से पता चलता है कि इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री. हियर यूज ऑफ मोर देन भी वर्ड THN आता है सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में. मोर देन साथ में ही जाते हैं. तो मोर देन अपने को बताता है कि मोर देन, द वर्ड मोर देन आर यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन डार्क एंड लाइट. So it is a comparative degree. Comparison, in comparison, when one thing is more than other, not will be used in positive degree. है ना. क्या है? उनके आईज का एडजस्ट, दे आर मोर एडजस्टेड टू डार्क. एक के साथ ज्यादा एडजस्टेड है देन टू द लाइट. इसलिए लाइट के साथ ज्यादा एडजस्टेड नहीं है. जब पॉजिटिव करेंगे तो हम पहला एंड पार्ट से शुरू करेंगे और हमको क्या यूज करना है? एज मच एज. यहाँ पे मोर है तो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री है. अभी हम मच लेंगे इन पॉजिटिव डिग्री और हम जो सेकंड पार्ट ऑफ द कंपैरिजन जिसकी हुई है उसको हम आगे लेंगे. शुरुआत तो देयर आइज से ही होगी. देयर आइज आर नॉट आएगा क्योंकि लाइट से ज्यादा एडजस्टेड नहीं है. देयर आइज आर नॉट एज मच एडजस्टेड टू लाइट आउटसाइड एज टू द डार्क. ओके, सो write this down and we are going to stop here. Okay, I hope you have understood everything. Use your notebooks. Yes, thank you.